Everyone. Hello and good evening, everyone. I believe I am audible and visible to every one of you. Do respond back in the comment section if I'm audible and visible. And let us start with the topic as early as possible. Good evening. All right. So, I believe after a gap of 2 weeks, we are having this class. No worries. I will try to cover all the topics which have been appearing in this period. But today we'll stick to one particular topic, and that topic is a very important topic which we have to see today. It is important because of several reasons. One reason being, government has been trying to push data protection bill for a very long time, but because of certain responsibilities which have been put by Supreme Court, government has not been able to convert this into an act. Also, good evening everyone. Also, this bill is important because it deals with very important aspect of Indian Constitution, that is fundamental right. Right? कौन सा fundamental right है, that we will see when we'll be discussing this particular topic. So the topic that we have picked today for discussion is Digital Personal Data Protection Bill 2022. Digital Personal Data Protection Bill 2022. This is just a minute. This particular bill is also written as DPDPB, Digital Personal Data Protection Bill. इससे पहले 2019 में एक बिल आया था, that was Personal Data Protection Bill. Before this, there was another bill which was introduced by the government, which was Personal Data Protection Bill. However, that was taken back by the government. That bill was taken back by the government because of several questions being raised related to individuals' privacy. Data of individual was to be collected, and how this data was to be kept secured, how individuals' privacy was to be kept secured, that was questionable in that particular bill. So that was taken back by the government, and after 3 months after taking back that bill, government has again released this particular bill with certain changes in it. The name again has been changed. It has been named Digital Personal Data Protection Bill. Okay, so what are the topics that we will be covering under this particular current affairs issue? First, we will be seeing what is the relevance. Relevance we have understood कि government ने recently release किया है फिर से, and that is one reason why it has. That is one reason why we are discussing this. Next one is, what are the 7 principles? What are the 7 principles related to this particular bill? इस particular bill से related 7 principles क्या हैं? इसमें यह बोला गया है कि इस particular bill में basically 7 pillars हैं जिसपे ये बिल जो है टिका हुआ है. So what are those 7 pillars? What are those 7 pillars that we have to see? Fine. Next, what are the key features of the bill? Key features क्या है particular bill के? That also we will be seeing. How has India strengthened data protection regime under this particular bill? Data जो protection है उसको कैसे ensure कर रहा है इंडिया या इंडियन गवर्नमेंट with this bill, that we will be seeing. Next is advantages of digital protection data bill. ठीक है, advantages क्या हैं, and what are the concerns associated with it? What is the criticism of this particular bill? That also we will be seeing. ठीक है, तो जैसे हमने पिछली क्लास में किया था, I will do that activity once again. I'll put certain questions in front of you. वो क्वेश्चंस आप देखेंगे,
फिर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे एंड फिर मैं आपसे उन क्वेश्चंस का आंसर पूछूंगा एंड यू हैव टू आंसर दोस क्वेश्चंस दैट विल एंश्योर हाउ बेटर यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। टॉपिक थोड़ा बड़ा है, कंटिन्यूसली ध्यान बना के रखना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। लेट अस सी व्हाट द क्वेश्चन वाज। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following statement stands correct about personal data protection bill? इनमें 3 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में करेक्ट है? फर्स्ट वन, राइट टू बी फॉरगॉटन इज प्रपोज्ड अंडर दिस बिल। राइट टू बी फॉरगॉटन इज प्रपोज्ड अंडर दिस बिल। नेक्स्ट, it is based upon the recommendation of B.N. Sri Krishna Committee report. It is based on the recommendation of B.N. Sri Krishna Committee. Next statement, data fiduciary. Data fiduciary is the one whose data is being collected here. ठीक है, data fiduciary कौन है? जिसका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। Now from the above 3 statements we have to choose the correct statement. From the above 2 statement we have to choose 3 statement we have to choose the correct statement. कि correct statement कौन सा है इनमें से? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 3 only and all of the above. ठीक है, इसका आंसर आपको समझ में आ जाएगा by the end of the lecture. Next, question number 2 is right to privacy is protected as an intrinsic part of right to life and personal liberty. Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement? इनमें से कौन सा जो है वो ऊपर वाले जो स्टेटमेंट को करेक्टली जस्टिफाई करता है? देखिए, क्वेश्चन स्क्रीन से एस्केप कर रहा होगा, डोंट वरी अबाउट इट। क्वेश्चन बस ये है कि ये जो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं डाटा प्रोटेक्शन बिल के अनुसार, इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, दैट वी हैव टू सी। ओके, तो उनमें से आपको देखना है। आप ऊपर वाले स्टेटमेंट को भूल जाइए, जो नीचे 3 स्टेटमेंट दिए गए उनमें से कौन डाटा प्रोटेक्शन बिल, जो हमारा डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है, उसका कंपोनेंट है, उसका हिस्सा है, दैट वी हैव टू सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपने देख लिया है कि राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये जो 2 स्टेटमेंट हैं, ये नीचे लिखे गए 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट इन 2 स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता है? पहला, आर्टिकल 14 एंड द प्रोविजंस अंडर 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड, आर्टिकल 17 एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Article 21 and the freedoms guaranteed under Article Part 3 of the Constitution. Article 24 and the provisions under the 44th Amendment to the Constitution. इसके अनुसार कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट होगा? That also we will be seeing. There is a statement from शीतल गुलिया 1 and 2 only. Let us see. हो सकता है आप सही हो सकता है आप गलत हो। सस्पेंस जो है कंप्लीट जब हमारा डिस्कशन हो जाएगा उसके बाद सस्पेंस को खत्म करते हैं। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट। पहला हमको देखना है व्हाट आर द 7 प्रिंसिपल्स, व्हाट आर द 7 पिलर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल। इस पर्टिकुलर बिल के 7 प्रिंसिपल्स कौन से हैं, 7 पिलर कौन से हैं? राइट, तो सबसे पहला जो पिलर है इसमें वो ये है द यूसेज ऑफ द डाटा विच इज कलेक्टेड। ठीक है, इसमें पहला पिलर क्या है हमारा? द यूसेज ऑफ द डाटा, यूसेज ऑफ द पर्सनल डाटा दैट इज कलेक्टेड बाय द अथॉरिटी विल बी डन इन लॉफुल मैनर, इन ए ट्रांसपेरेंट वे, एंड while collecting the data the authorities will be fair to the individual whose data is being collected. So data collection of individual, legal, transparent
and pair means. Pair means will be used for the collection of data. Fine. Second, जब डेटा कलेक्ट किया जाएगा then individual will be informed about why the data is being collected, and once the data is collected for that reason, it cannot be used for any other purpose. So data which is collected shall only be used for specific purpose which is been mentioned to the individual. ठीक है? So second pillar, data collected to be used only for the purpose it was collected. So this is the second pillar. Fine. Third one talks about data minimization. What is data minimization? Data minimization herein means that if for a specific purpose data is being collected, then the authorities should try to collect minimum as possible data. ऐसा नहीं कि बहुत सारा डाटा कलेक्ट कर लिया, उसमें छोटा सा पार्ट आप और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए 2-3 स्पेसिफिक डेटा से ही काम चल जाता. तो अगर 2-3 स्पेसिफिक डेटा से काम चल सकता है, then only 2-3 specific data has to be collected. So as minimum as possible collection of data should be the target of the authority. That is data minimization. Only relevant and necessary information need to be collected from the individual, so for the fulfillment of the objective for which the data is being collected. That is data minimization. Good evening, Ashu. Okay, got it? Understood? What is data minimization? Next is related to data accuracy. Next one is data accuracy. What is data accuracy? The emphasis of the authorities who are going to collect data, or the emphasis of the entities who are going to collect data should be on data accuracy. उनका जो एम्फेसिस होना चाहिए कि आप एक्यूरेट डाटा कलेक्ट कीजिए. बार बार इंडिविजुअल्स को ये नहीं है अरे नहीं आपका जो डाटा कलेक्ट किया था हमने वो थोड़ा सा गलत हो गया, आपके बायोमेट्रिक डाटा के आंखों की रेटिना का फोटो अच्छे से नहीं आया, थंब इंप्रेशन अच्छे से नहीं आया, ये चीज नहीं होनी चाहिए. सो द एम्फेसिस शुड बी ऑन डेटा एक्यूरेसी. कितने पिलर्स हो गए हमारे? वी हैव कंप्लीटेड सो फार 4 पिलर्स. ठीक है, नेक्स्ट data collected is not to be stored perpetually. कि जो डाटा कलेक्ट किया गया है उसका मतलब ये नहीं कि एक बार डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको परमानेंटली आप स्टोर करके रख दें और इट इज स्टोर्ड फॉर टाइम इमेमोरियल. नो, there is a certain time limit for which it should be stored. Once the objective has been achieved, it should be removed. Right? Once the objective has been achieved, it should be removed. So it should be stored for a fixed duration. Stored for a fixed duration. Got it? Understood? Is it understood by everyone?
then there should be reasonable safeguard to ensure that there is no unauthorized collection or processing of personal data. There should be reasonable restrictions. There should be reasonable restrictions to ensure that unlawful data collection and processing is not allowed. There should be reasonable restrictions which should not allow unlawful data collection and processing of the personal data. Fine. Then next one is that the person who decides what data is to be collected and why it has to be collected should be made accountable if there is any misusage of the data which has been collected. जो इंडिविजुअल या जो एंटिटी या फिर जो अथॉरिटी ये डिसाइड कर रही है कि डाटा कहां पे यूज होना है और क्या डाटा कलेक्ट होना है, that individual, that entity or that authority should be the accountable person, should be the accountable authority when any misusage of such data takes place. When any misusage of such data takes place. So these are the 7 pillars. These are the 7 pillars of this thing. ठीक है? अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड है ये. फाइन. नेक्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू सी नाउ इज फीचर्स ऑफ द बिल. फीचर्स ऑफ द बिल. इस बिल के फीचर्स क्या हैं? व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ दिस बिल? फाइन. व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ दिस बिल? देखिए इसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट होना चाहिए वो होना चाहिए कि डाटा जिसका कलेक्ट किया जा रहा है और जो डाटा कलेक्ट करके यूज होगा, व्हाट दैट इंडिविजुअल इज टू बी कॉल्ड एज. उस इंडिविजुअल को क्या बोला जाएगा? फर्स्ट वन, डेटा प्रिंसिपल. डेटा प्रिंसिपल. Who is a data principal? Data principal is that individual whose data is to be collected or whose data is collected by the authority. That individual is called data principal. In case the individual is less than 18 years, in case the individual is less than 18 years, in such cases, parents of that individual will be classified as data principal. In that case, the parents of that individual will be classified as data principal. ठीक है? तो data principal कौन है? जिनका डाटा कलेक्ट किया जा रहा है. These are data principal. Next, data fiduciary. Data fiduciary. ठीक है? डेटा फिड्यूशियरी कौन है? डेटा फिड्यूशियरी इज दैट एंटिटी, is that individual, is that authority who decides what data is to be collected and where this data has to be used. कौन सा डाटा कलेक्ट किया जाएगा और वो डाटा का यूसेज कहां पे है, कैसे है. that individual, that entity or that authority is known as data fiduciary. Then is another terminology, there is another terminology which is data processor. Data processor is basically a third party. Data processor is basically a third party who actually processes the data which is collected
ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल जो डाटा कलेक्ट हुआ है उसको प्रोसेस करना और उसको उस ऑब्जेक्टिव के लिए यूज करना इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटा प्रोसेसर. So there are three components: first party, second party, third party. First party is data principal, second party is data fiduciary, third party is data processor. ठीक है, fine. Now what fourth point इसमें है personal data. What is personal data? How is personal data defined in the bill? How is personal data defined in the bill? Personal data is any data of an individual which helps in identifying that individual. किसी भी इंडिविजुअल से रिलेटेड कोई भी डेटा जो उस इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, दैट इज नोन एज पर्सनल डेटा. राइट. नेक्स्ट इज डेटा प्रोसेसिंग. व्हाट इज डेटा प्रोसेसिंग? हाउ इज डेटा प्रोसेसिंग डिफाइंड इन द बिल? डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है? डेटा प्रोसेसिंग को कैसे डिफाइन किया गया है इस पर्टिकुलर बिल में? यस, डेटा प्रोसेसिंग इज नथिंग बट एंटायर साइकिल ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी कैरिड आउट इन द रेस्पेक्ट ऑफ पर्सनल डेटा. किसी भी इंडिविजुअल से रिलेटेड जो पर्सनल डेटा कलेक्ट किया गया है उससे रिलेटेड आप जो भी ऑपरेशंस कर रहे हैं उसको आप क्या इंफॉर्मेशन उससे कलेक्ट कर रहे हैं, आप वो सारी चीज जो होती है वो डेटा प्रोसेसिंग कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. जब डेटा कलेक्ट किया जाता है तो आपका बिहेवियरल टेंडेंसी को भी कलेक्ट किया जाता है. आपने कई बार देखा होगा कि आप गूगल पे कोई फीफा के बारे में अगर आप सर्च करते हैं तो एक कोइंसिडेंस समझ लीजिए या फिर एक एल्गोरिदम जो डिजाइंड है वो समझ लीजिए. आपके पास फुटबॉल के बूट, फुटबॉल की जर्सी, फीफा से रिलेटेड वीडियोस के ऐड जो हैं वो आने शुरू हो जाते हैं. कैसे हो रहे हैं ये? क्योंकि आपने जो एक्टिविटी की अपने फोन में, दैट डेटा हैज बीन सेंट टू सम entity, that data has been sent to some authority, and that authority according to your personal interest is sending you those ads. तो यहां पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, उसका यूज होता है, एआई का यूज होता है, डेटा प्रोसेसिंग का यूज होता है. ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मैंने बोला वो है, मशीन लर्निंग है, उसका यूसेज होता है. तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को मिलके बेसिकली डेटा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है. एंड डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंडियन गवर्नमेंट हैज टू कम अप विद दिस बिल बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस. वो रीजंस क्या है वो हम देखेंगे आगे. ठीक है, बट प्रोटेक्टिंग द डाटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आज से कुछ साल पहले कोई एक इंडिविजुअल थे, काफी रिनाउंड इंडिविजुअल, ही गेव अ वेरी गुड स्टेटमेंट दैट डेटा इज अ न्यू ऑयल. डाटा जो है नया ऑयल है. जैसे ऑयल ने क्या किया था, इकोनॉमी अक्रॉस द वर्ल्ड को बूम कर दिया था. राइट. सो सिमिलरली डाटा जो है आज की डेट में वो इकोनॉमी को बूम करने की हिम्मत रखता है, ताकत रखता है, कैपेसिटी रखता है. रीजन बीइंग, आप इंडिविजुअल्स को उनके चॉइसेस के बेसिस पे, उनके बिहेवियरल टेंडेंसी के बेसिस पे, एटीट्यूड्स के बेसिस पे आप जो प्रोडक्ट्स हैं उनको शो करते हैं, और आप सीधा उनका जो मार्केटिंग परचेजिंग जो उनकी एक्यूमेंट जो है उसको आप टारगेट करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू प्रमोट योर गुड्स. उसी वजह से इकोनॉमी जो है चल रही है. दैट इज वेयर द इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा लाइज. ठीक है, नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू सी, हमने डाटा प्रिंसिपल देख लिया, डाटा फिड्यूशियरी देख लिया, डाटा प्रोसेसर देख लिया, पर्सनल डाटा क्या है वो देख लिया हमने, डाटा प्रोसेसिंग क्या है वो हमने देख लिया. एक और जो टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो बिल में यूज किया है, दैट इज सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूशियरी. It is significant data fiduciary, SDF. What is significant data fiduciary? Can anyone tell me what is significant data fiduciary? Significant data fiduciary is that individual or that entity or that authority which deal with very high volume of data. They deal with
very high volume of data. And when they deal with very high volume of data, then that person or that entity or that authority has to be very responsible one. Therefore, the central government, who will be deciding who is going to be the significant data fiduciary, central government will decide which entity or which authority will fall under this category. This will be decided by the central government. Central government will be deciding who will fall under this particular category, right? And this will be done based on number of factors. And such authorities and such agencies which will be categorized as significant data fiduciary will have the responsibility to appoint data protection officer and data auditor. They will have to appoint data protection officer and data auditor. Data protection officer and data auditor. ठीक है, तो ये कौन करेगा? जो सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी जो है, ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसको इंश्योर करना, राइट? ये हमने फीचर्स देख लिए. नेक्स्ट इज व्हाट आर द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, व्हाट आर द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अंडर दिस पर्टिकुलर बिल. इस बिल के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं उनके राइट्स क्या क्या हैं वो हमको देखने हैं अब, राइट? तो राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स. राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स. ठीक है, पहला राइट है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन. एक्सेस टू इंफॉर्मेशन. The individuals will be having the right to access the information, access the basic information, not critical informations. Basic information को वो access कर सकते हैं. And this information will be available in all the languages which are mentioned, which have found their place in the 8th schedule of the Constitution. In all the languages present in 8th schedule of Constitution. ठीक है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इंश्योर किया जाएगा इस तरह से. नेक्स्ट वन इज राइट टू कंसेंट. राइट टू कंसेंट क्या है? दैट इट इज individual's right whether to give consent to collect the data required or not, or whether to use the data collected for specific purpose or not. That is called right to consent. Fine. Individuals also have the right to withdraw their consent from the data fiduciary. डेटा फ्यूडिशरी से वो ये कंफर्म कर सकते हैं कि जो आपने डाटा कलेक्ट किया है वो कौन कौन सा डाटा कलेक्ट किया है आपने, और अकॉर्डिंगली आप कंसेंट दे सकते हैं. और अदरवाइज अगर आपने पहले कंसेंट दे दिया है एंड देन यू रियलाइज कि नहीं मुझे अपना जो कंसेंट है वो वापस लेना है, देन यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो. तो दैट कैन बी withdrawn also. The consent can be withdrawn also. Then another one is right to erase. Right to erase. What is right to erase? What is right to erase? Anyone? Right to erase क्या हुआ? Right to erase क्या हुआ?
आपका जो डाटा कलेक्ट हुआ है, you have the right to ask the data fiduciary either to delete the complete data or make corrections in the data which has been collected. Right to erase में आता है आपका eraser, erase करना and correction both आता है. Erase and correction. That is also right of individuals. Next, fourth right कौन सा है इसके अंदर? Fourth right is right to nominate. Right to nominate. Suppose you are not capable enough to take care of all the rights which are provided in this particular bill. Then you have the right to nominate any individual who will take steps on the basis of these rights on your behalf. आप किसी एक को nominate भी कर सकते हैं to exercise the rights which have been mentioned, to exercise all these rights when the individual is not capable enough or in the event of death. अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है या फिर वो अपने राइट्स जो राइट्स मेंशन्ड है उनको एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो वो उनको किसी और को नॉमिनेट कर सकता है इन चीजों को एक्सेस, इन राइट्स को एक्सेस करने के लिए, या फिर डाटा वाटा जो भी रिमूव करने के लिए, इरेज करने के लिए, करेक्शन करने के लिए, फॉर ऑल दोज पर्पसेस. ठीक है, ये तो हो गया हमारा राइट्स ऑफ इंडिविजुअल. नाउ वी हैव टू सी ड्यूटीज ऑफ इंडिविजुअल. ड्यूटीज, राइट्स विदाउट ड्यूटीज आर ऑफ नो यूज. राइट, ड्यूटीज ऑफ इंडिविजुअल. क्या लगता है क्या ड्यूटीज होंगी इंडिविजुअल्स की? ड्यूटीज ऑफ इंडिविजुअल्स. व्हाट कैन बी द ड्यूटी ऑफ इंडिविजुअल? First is duty of individuals to comply with all the applicable laws. Duty of individuals to comply with all the applicable laws. Secondly, if the individual has given consent to the collection of data, then individuals to his or her knowledge provide only the correct or furnish only the correct information, exact information as sought by data fiduciary. Data fiduciary जो डिमांड करे वैसी इंफॉर्मेशन जो है आपको पुट करनी चाहिए अगर आपने कंसेंट दिया है तो. फाइन. नेक्स्ट क्या प्रोविजन है इस बिल में? द प्रोविजन ऑफ डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन. डेटा प्रोटेक्शन board. This bill also has a provision of data protection board. That means the government will have to constitute a data protection board for taking care of the data which has been collected under or according as per the provisions of the bill. Also, this data protection board will have to overlook or oversee the compliances of the bill. इस बिल में जो जो प्रोविजंस हैं वो उनसे जो अथॉरिटीज हैं, एंटिटीज हैं, कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस चीज को ओवरसी करने के लिए भी ये डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो है उसको बनाया गया है. कहीं कोई इसको वायलेट तो नहीं कर रहा है. डाटा जो रिक्वायर्ड है उसके अलावा कोई और डाटा तो इन्फॉर्म कलेक्शन नहीं हो पा रहा है. डाटा मिनिमाइजेशन पे फोकस है या नहीं है, so that all the provisions are complied with. For this, data protection board has been constituted.
Also, data principals, individuals whose data is being collected or has to be collected, these data principals, if they are not satisfied with the services of data fiduciary, can reach out to data protection board for remedial measures. ठीक है, रेमीडियल मेजर्स के लिए अगर कोई इंडिविजुअल डाटा प्रिंसिपल जो है डाटा फिड्यूशरी के एक्शन से सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं है, तो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड में वो जा सकता है और रेमीडियल मेजर्स के लिए अपील कर सकता है. दैट इज द सोल पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड. फाइन. ऑल्सो दिस बिल हैज provision for cross-border data transfer. This bill has provision for cross-border data transfer. Cross-border data transfer क्या हुआ? देखिए, पिछला जो बिल था हमारा 2019 में जो आया था और जो गवर्नमेंट ने जिसको विड्रॉ कर लिया, उसका सबसे बड़ा लूप होल ये था कि उसमें मैंडेटरी क्या हुआ था कि जो डेटा इंडिया में कलेक्टेड है वो डेटा बाहर नहीं जा सकता है. So that was one of the major loophole of that particular bill. So now government has amended it, and in the new bill they have brought in the provision of cross-border data transfer. But there are conditions related to it. वो ये कहते हैं कि डाटा जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री, इंडिया के बाहर जो डाटा जो है उसको आप ट्रांसफर तो कर सकते हैं, बट जिस कंट्री में आप डाटा लेके जा रहे हैं, that country should have suitable data security landscape. That country should have suitable डाटा सिक्योरिटी लैंडस्केप. मतलब कि डाटा सिक्योरिटी के जो प्रोविजंस हैं, प्रोटोकॉल्स जो हैं, वहां पे पुख्ता होने चाहिए. ऐसा नहीं कि अब यहां से लेके जाओ और वहां पे डाटा लीक हो जाए. एंड इंडियन गवर्नमेंट विल डिसाइड स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशंस विद विच दिस डाटा ट्रांसफर कैन टेक प्लेस. इंडियन गवर्नमेंट विल डिसाइड कि कौन से ज्योग्राफिकल लोकेशंस में आप डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं. On the basis of what? Whether the suitable data security landscape is present or not, or whether the government of India can in future access data related to Indian citizens or not. पहली कंडीशन ये कि suitable data landscape होना चाहिए. दूसरा ये कि whether Indian government can access data related to Indian citizens or not. Related to Indian citizens or not. ठीक है. सो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2. ये हो गया डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड के बारे में हमने देख लिया. उसके बाद हमने देख लिया क्रॉस बॉर्डर डाटा ट्रांसफर के बारे में. अब पेनल्टीज के बारे में, अगर जैसे कंप्लायंस के लिए डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड को रखा गया है एंड इट रियलाइजेस दैट द सर्विसेज और द एक्शंस ऑफ डाटा फिड्यूशियरी और डाटा प्रिंसिपल इज अंडर स्कैनर, is questionable, and they have worked with malafide intentions, तो क्या implications होंगे उसके? तो उसके implications क्या होंगे? Right? So there are penalties which are prescribed under this particular bill. And the penalties are financial penalties. Penalties are financial penalties. Financial penalties. Financial penalties for both data fiduciary and data principals. डाटा फिड्यूशरी एंड डाटा प्रिंसिपल्स, दोनों के लिए फाइनेंशियल पेनल्टीज जो हैं वो प्रिस्क्राइब्ड है इस पर्टिकुलर बिल में. नाउ डाटा प्रिंसिपल्स के लिए क्या है? अगर डाटा प्रिंसिपल से जो इंफॉर्मेशन ली गई, द इंफॉर्मेशन विच हैज बीन सॉट फ्रॉम डाटा प्रिंसिपल आफ्टर दे हैव गिवन द कंसेंट, इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट, इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट एक्यूरेट, और they have gone to data protection board with frivolous grievances, frivolous complaint, अगर उनकी complaint जो है
बिना सरपेर की है, परेशान करने के लिए चले गए, देन इन दैट कंडीशन डाटा प्रिंसिपल्स कैन बी फाइंड अप टू ₹10,000. दे कैन बी फाइंड अप टू ₹10,000. डेटा फिड्यूशियरी का अगर उन्होंने डाटा जिस पर्पस के लिए कलेक्ट किया है उसके अलावा किसी और पर्पस के लिए डाटा वो कलेक्ट करते हैं, या फिर इंडिविजुअल के कंसेंट के बिना उस डाटा को यूज करते हैं, या फिर इंडिविजुअल ने डाटा को इरेज करने के लिए बोला है उस डाटा को वो इरेज नहीं करते हैं, देन in that condition the authority, the entity which has been given the responsibility to collect data to decide where it has to be used can be penalized from in the range of ₹50 crore to ₹500 crore. 50 करोड़ से लेके 500 करोड़ तक का फाइन जो है उन पे लग सकता है. 50 करोड़ से लेके 500 करोड़ तक का फाइन उनके ऊपर लग सकता है. ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनेंशियल पेनल्टीज. यस वैष्णवी रवि, ठीक है, यस फाइन. अब इस बिल में हमको देखना है कि एग्जम्पशन किसी को मिले हैं या नहीं मिले हैं. हु हैज बीन प्रोवाइडेड विद एग्जम्पशंस, एग्जम्पशंस किसको मिले हैं. जो प्रोविजंस हैं इस बिल के, ये ओवरऑल सबके लिए एप्लीकेबल हैं या फिर सर्टेन एग्जम्पशंस आर गिवन. देखिए, पहले तो ये है कि कई स्टार्टअप्स हैं जिनको डाटा की रिक्वायरमेंट होती है, बट इन कंप्लायंसेस को फुलफिल करने के लिए उनको या तो उनके पास रिसोर्सेस कम है, और इन कंप्लायंसेस को फुलफिल करेंगे तो वो ज्यादा फ्लरिश नहीं कर पाएंगे इनिशियली, और उन्होंने अपना कंसर्न जो है गवर्नमेंट के साथ डिस्कस भी किया था. तो कीपिंग दैट इन माइंड, गवर्नमेंट हैज द राइट टू डिसाइड कि ये जो स्टार्टअप्स हैं उनको कैसे हम एग्जम्प्ट कर सकते हैं फ्रॉम कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल. ठीक है, इसमें और एक चीज है, national security related exemptions are also present in the bill. For example, if the data is being used by any of the agency of the government, then government has the power to exempt that particular agency, exempt that particular authority from the provisions of this particular bill, keeping in mind the sovereignty, security and integrity of the country. Keeping in mind the sovereignty, security and integrity of the country. Fine. ये क्लियर है सबको? फाइन. नेक्स्ट हमने देख लिया, अभी क्या देखा हमने? इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द बिल. नाउ वी हैव टू सी, ये डाटा प्रोटेक्शन बिल तो आ गया, बट वेदर द डाटा विच इज बीइंग कलेक्टेड और विच विल बी कलेक्टेड, उसको कलेक्ट करने के बाद क्या हमारे पास जो डाटा प्रोटेक्शन रिजीम जो है, इज इट स्ट्रॉन्ग इनफ टू सिक्योर द डाटा विच इज बीइंग कलेक्टेड बाय द अथॉरिटीज. जो अथॉरिटीज डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उनको सिक्योर करने के लिए हमारा कंट्री का रिजीम कैसा है, इज इट स्ट्रॉन्ग इनफ और इज इट वेरी वीक, दैट ऑल्सो वी हैव टू सी नाउ. तो इसमें देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी 2017 में. 2017 जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. 2017 जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. उस जजमेंट में क्या हुआ था? वो जजमेंट, वो जो केस था, बेसिकली केस था जस्टिस के एस पुट्टीस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. दैट केस वाज जस्टिस के एस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 2017 में. इन दैट केस, इन दैट पर्टिकुलर केस, वहां भी डाटा प्रोटेक्शन बिल को रिलेटेड ही, बिल से रिलेटेड ही केस था ये. एंड इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इफ यू आर ब्रिंगिंग एनी डाटा प्रोटेक्शन बिल, वो बिल तभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल है, तभी तक लीगल है, जब तक आप आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी को आप सबसे सुप्रीम रख के लेके आते हैं. तो इफ यू कैन अश्योर दैट फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल नॉट बी वायलेटेड under the provisions of that particular bill, only then that particular bill will stand.
the test of constitutionality. Only then it will stand the test of constitutionality. फाइन. तब गवर्नमेंट का और ऊपर प्रेशर आ गया कि हमको तो ऐसा बिल मैकेनिज्म, हमको ऐसा स्ट्रक्चर हमको बनाना ही पड़ेगा जिससे कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद रिलेटेड टू एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री हुज डाटा इज बीइंग कलेक्टेड इज नॉट वायलेटेड. ठीक है. इसी के बाद एक कमिटी एस्टैब्लिश की गई थी विच वाज BN श्री कृष्णा कमिटी. और ये जो जितने भी डाटा प्रोटेक्शन बिल जो आ रहे हैं उन सब का बेसिस जो है BN श्री कृष्णा कमिटी रिपोर्ट है. इससे पहले जो आया था उसका बेसिस भी वही था. इस समय जो बिल आया है 2022 में, 2022 में, द बिल विच हैज कम अगेन इन 2022 अगेन हैज द सेम बेस रिलेटेड टू श्री कृष्णा कमिटी रिपोर्ट. श्री कृष्णा committee report 2017, and in this Sri Krishna committee report again certain measures were very strictly laid down which will ensure protection of data collected for the use by agencies or by entities. The report which was submitted by this committee emphasized on restrictions on processing of data collected by the agencies. ठीक है. जो restrictions जो हैं वो उन पे emphasis था. restrictions किस पे? collection and processing of data. श्री कृष्णा कमिटी रिपोर्ट का फोकस था restrictions on collection and processing of data. restriction on collection and processing of data. ये बोला था कमिटी रिपोर्ट ने कि इफ यू मेक लॉ इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है. सो दैट डाटा सिक्योरिटी इज मेंटेन्ड. नेक्स्ट वन वाज डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी. देयर शुड बी प्रोविजन ऑफ डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी. देयर शुड बी डाटा प्रोविजन ऑफ डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी. Right? Next, right to be forgotten. Right to be forgotten shall be part of the bill the government proposes to bring. Then it was Sri Krishna committee report only which emphasized on data localization. Data localization पे जो गवर्नमेंट ने पिछले बिल में डाटा लोकलाइजेशन जो इंक्लूड किया था अपने बिल में, दैट वाज डायरेक्टली बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ श्री कृष्णा कमिटी. बट दिस टाइम श्री कृष्णा जो गवर्नमेंट है उसने डाटा लोकलाइजेशन को हटा के ट्रांसफर अक्रॉस द बॉर्डर जो है वो इनेबल किया है, बट विद सर्टेन कंडीशंस. ठीक है. तीसरा जो हमारा अपना आईटी रूल्स जो है 2021, आईटी रूल्स 2021. सो दीज 3 इंपॉर्टेंट श्री कृष्णा कमिटी रिपोर्ट, जस्टिस पुट्टस्वामी के केस में सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था, और आईटी रूल्स 2021, these are very powerful tools. These are very powerful components which ensure the safety of data which is collected, protection of data which is collected by the agencies, which ensure the collection of data, protection of data collected by the agencies. So as far as strengthening of data protection regime in India is concerned, these 3 important components play a very important role in there. Right? Next very important point that we have to discuss is why does India need a data protection bill? क्या जरूरत थी हमें एक डाटा प्रोटेक्शन बिल को बनाने की या फिर उसको लेके आने की? Why it was important for India to have such bill? Fine. Why it was important for India to have data protection bill, to have data protection bill. See,
Right now, number of internet users in India is around 820 million. 820 million internet users are present in India, which is going to be, very soon it is going to be 1.2 billion. Very soon it is going to be 1.2 billion. So there is a very huge population, very huge section of the country which uses internet very openly. Okay? And if that data is compromised, if the breach of data takes place with respect to 1.2 billion people, the safety, security, the integrity, the sovereignty of the country, safety, security, individuals की, sovereignty, integrity, country की, that will be in danger. That will be in danger. Secondly, इंडिया में जो इंटरनेट पे जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो चाइना की तरह नहीं है. चाइना में क्या है, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस है, कौन सी वेबसाइट चल सकती है, कौन सी वेबसाइट नहीं चल सकती है, कितना आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, कितना आप ग्लोबली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. These all things are controlled by the administration in China. But in India, the internet or the connection of individuals with the global community is very open, is very accessible, is very, the whole community is interconnected with the global community. जब आप इतने ज्यादा ओपन हैं, एक्सेसिबल हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, देन देयर शुड बी अ मैकेनिज्म, देयर शुड बी अ सिस्टम विच एंश्योर्स द प्रोटेक्शन ऑफ डाटा. आपने देखा होगा हाल फिलहाल में बहुत बड़ा स्कैम चलता था कि आपकी बैंक रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो लीक हो जाती थी. बैंक रिलेटेड इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, आपको कॉल्स आने शुरू हो जाते थे कि आपका ये जो हमें इसे सो एंड सो कंपनी से बोल रही हूँ, आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा करोगे, अपना कार्ड का नंबर बताइए, आपके पीछे सीवीवी नंबर होगा वो बताइए, आपको ओटीपी आएगा वो आप मुझे बता दीजिए, आपका जो कनेक्शन जो है फिर से चालू हो जाएगा. इस पे एक बहुत बढ़िया वेब सीरीज भी आई है, जमताड़ा, आप लोगों ने देखी होगी शायद. अब बोलोगे सर आप तो एग्जाम के लिए बोल रहे हो, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा रहे हो, वेब सीरीज जो है प्रमोट कर रहे हो. I'm not promoting any web series, I'm just promoting the content of that web series. और once in a blue moon अगर आप ये चीज़ें देख लेते हैं तो कोई बुराई नहीं है. डेली इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे शॉर्ट्स और रील्स देखने से अच्छा है once in 10 days और once in a week आप ये वेब सीरीज देख लें तो आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बना हुआ रहता है. आप वुमेन का जो बोल रहे हैं कि 1/3 जो यूजर्स हैं वो वुमेन हैं, उससे पर्पस हमारा सॉल्व नहीं हो रहा है. दैट इज नॉट सॉल्विंग आवर पर्पस. आप वो मेंशन कर सकते हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी और इंटरनेट यूजर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म, रूरल वर्सेस अर्बन डिजिटाइजेशन रिलेटेड क्वेश्चन, तब आप शायद ये यूज कर सकते हैं. बट हमको यहाँ पे देखना है कि इंडिया को जरूरत क्या है, क्यों इंडिया को डाटा प्रोटेक्शन बिल चाहिए था. तो इसमें स्पेसिफिक वुमन रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आप डालें, वुमन रिलेटेड आप कोई डेटा डालें इंटरनेट यूसेज को लेके, दैट आई डोंट थिंक इज वेरी मच प्रूडेंट. ठीक है, नेक्स्ट हमने देख लिया चाइना वाला केस देख लिया. क्योंकि इंडियन सिटीजन जो है, इंडियन इंटरनेट यूजर्स जो हैं, दे आर वेरी ओपन, दे आर वेरी एक्सेसिबल एंड दे आर वेरी मच कनेक्टेड विद, इंटरकनेक्टेड विद द ग्लोबल कम्युनिटी. सेकेंडली, नंबर ऑफ यूजर जो है इंडिया में बढ़ने वाले हैं. तीसरा, आपने हाल फिलहाल में देखा इंडिया हैज नाउ इंडिया हैज प्रेसिडेंसी ऑफ G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास है. ऑल्सो काउंसिल चेयरमैनशिप ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी इंडिया के पास है. इंडिया उसका भी चेयरमैन है. किसका? ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी चेयरमैनशिप इंडिया के पास है. तो जब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म को आप प्रिसाइड ओवर कर रहे हैं, जब इतने बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म को आप प्रिसाइड कर रहे हैं, चेयर कर रहे हैं, देन क्वेश्चन विल बी रेज्ड इफ यू डू नॉट हैव सच स्ट्रक्चर, सच मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट द डेटा ऑफ इंडिविजुअल्स, टू प्रोटेक्ट द डाटा ऑफ सिटीजन्स ऑफ योर ओन कंट्री. सो एक बेंचमार्क वो सेट करता है ग्लोबल कम्युनिटी में कि इंडिया के पास डाटा प्रोटेक्शन बिल है, द प्रोटेक्शन ऑफ डाटा इज सेफ हियर, the data which is collected is safe here,
जो एजेंसीज हैं, ग्लोबल एजेंसीज जो हैं, वो इंडिया में आना चाहेंगी कि द रिजीम इज वेरी गुड, अगर हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं तो उस पर चोरी होने का या फिर उसका मिसयूसेज होने का चांसेस कम है. द क्लाइंट्स, आवर क्लाइंट्स आर सेफ, आवर कस्टमर बेस आर सेफ, आवर कंज्यूमर बेस इज सेफ इन इंडिया. सो एक बेंचमार्क सेट करता है. दैट इज व्हाई अगेन इंडिया नीडेड टू हैव सच डाटा प्रोटेक्शन बिल. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस डाटा प्रोटेक्शन बिल? एडवांटेजेस क्या हैं इस डाटा प्रोटेक्शन बिल के? Advantages of data protection bill. What are the advantages of data protection bill? ठीक है, बताइए क्या एडवांटेजेस हैं. पहला, जो कंप्लायंस बर्डन जो है, जो प्रोविजंस हैं, दे आर नॉट वेरी हार्श. सो कंप्लायंस बर्डन इज प्रोपोर्शनल एंड मिनिमल. ठीक है, कंप्लायंस बर्डन जो है, कंप्लायंस burden is proportional and minimal. Compliance burden is proportional and minimal. Find second क्या है? The adjudicating body, जो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड की हमने बात की है, इट इज इंडिपेंडेंट बॉडी. वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंटली एडजुडिकेट करेगी ऑन द कंप्लेंट्स ऑफ डाटा प्रिंसिपल्स एंड डाटा फ्यूडिशरी. तो इन्फ्लुएंस होने के चांसेस जो हैं बहुत मिनिमल है. सो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड इज ए इंडिपेंडेंट बॉडी. डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी. इंडिपेंडेंट body. Data protection board is an independent body. Third, और क्या बेनिफिट्स हैं इस पर्टिकुलर बिल के? What are other benefits of this particular bill? जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी जो कंप्लीट जो डाटा कलेक्शन का जो इकोसिस्टम बनेगा, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए जो भी स्टैंडर्ड सेट होंगे, जो भी एसओपीज जो बनाए जाएंगे, दैट विल बी डिसाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MEITY. तो गवर्नमेंट इज गोइंग टू डिसाइड. कोई पर्सनल, कोई प्राइवेट एजेंसी या फिर एंटिटी जो है वो स्टैंडर्ड्स या एसओपीज जो है वो डिसाइड नहीं करेंगे. या फिर ऐसा नहीं है कि हर डाटा कलेक्ट करने का अलग एसओपी या स्टैंडर्ड है. जो भी डाटा कलेक्ट करने का जो स्टैंडर्ड्स होंगे, जो एसओपीज होंगे, यूसेज, उसको यूज करने का जो एसओपी होगा, जो स्टैंडर्ड्स होंगे, दैट विल बी डिसाइडेड ओनली एंड ओनली बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो गवर्नमेंट विल बी मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पज. राइट? ठीक है. नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, देन बेनिफिट एक है. अब दूसरा बेनिफिट है आपका क्रॉस बॉर्डर डाटा फ्लो. क्रॉस बॉर्डर डाटा फ्लो नहीं होने की वजह से बहुत सारे जो एक्सटर्नल प्लेयर्स थे, एजेंसीज थे, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन collecting data and using them because they were enforced to localize data in the within the political boundaries of the country. Now they have been given chance to shift the data and store them in other geographical locations also. But the दो conditions मैंने बताई थी, वो दो conditions उन geographical locations को fulfill करनी पड़ेंगी. All right? Then one of the major importance of this bill is this bill recognizes the individual's right to पोस्टमार्टम प्राइवेसी. पोस्टमार्टम प्राइवेसी मतलब कि आप अपना डाटा जो है इरेज करवा सकते हैं, डाटा आप करेक्ट करवा सकते हैं. देयर इज ऑल्सो नोन एज राइट टू बी फॉरगॉटन. दूसरा, आपका जो डाटा जो है वो परमानेंटली जो है स्टोर नहीं है. देयर इज स्टोर्ड ओनली फॉर ए लिमिटेड पीरियड आफ्टर विच इट हैज टू बी टेकन अवे, इट हैज टू बी डिलीटेड. दीज आर सर्टेन प्लस पॉइंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल. कंसर्न्स क्या है? जो टाइम लिमिट जो है वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि जो ग्रीवांसेस हैं वो कितने टाइम पीरियड में रिजोल्व हो जाएंगे. अगर आपने डाटा इरेज करने की बात की है तो वो डाटा
आपके एप्लीकेशन के कितने दिन बाद वो डाटा इरेज होगा, या फिर उसमें डाटा में जो करेक्शन है विद इन हाउ मेनी टाइम, विद इन हाउ मेनी टाइम पीरियड द डाटा जो आपका करेक्शन की बात है वो करेक्ट हो जाएगा। तो पहला जो क्रिटिसिज्म है वो ये है, द टाइम पीरियड हैज नॉट बीन डिफाइंड। सेकेंड इज, जितने बार भी डाटा आपका चेंज होगा, जितने बार भी डाटा आपका यूज होगा, जितने बार भी डाटा में करेक्शन आएगी, दैट ऑल दोस टाइम्स द डाटा प्रिंसिपल हैज टू बी नोटिफाइड। मतलब मेरे से रिलेटेड अगर छोटे छोटे बदलाव भी आ रहे हैं, छोटे छोटे चेंजेस भी आ रहे हैं, तो उसमें बार बार मुझे नोटिफाई किया जाएगा। मगर जरूरी नहीं है कि हर छोटा बड़ी जो बदलाव है, डैश लग रहा है, हैश लग रहा है, कोमा लग रहा है, या फिर मेरा एड्रेस थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, उससे कोई बहुत ज्यादा मेरी जो प्राइवेसी है कॉम्प्रोमाइज हो रही हो, ऐसा नहीं है। बट इवन आफ्टर दैट देयर इज टू मच ऑफ botheration for the individual whose data is to be corrected. नेक्स्ट अगर आप देखेंगे इसमें और एक जो है वो दिक्कत ये है कि हमने जो डाटा के यूसेज को लेके जो इस बिल में मिस यूसेज को लेके जो बिल में प्रोविजंस हैं वो सिर्फ फाइनेंशियल पेनल्टीज हैं, क्रिमिनल पेनल्टीज जो हैं वो डिफाइन नहीं है, क्रिमिनल पेनल्टीज जो हैं वो मेंशन्ड नहीं है यहाँ पे। हो सकता है कि आपका डाटा से रिलेटेड कोई क्रिमिनल एक्टिविटी जो है वो कोई कमिट करना चाहे कोई एंटिटी, सो क्रिमिनल penalties should also have been there depending upon how and where the misuse of data has taken place. Next, complete bill में there is no concept of sensitive or critical data. Sensitive और critical data को लेके कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है पूरे बिल में। तो इसको भी बोला जा रहा है कि एटलीस्ट देयर शुड बी सर्टेन type of information, there should be certain type of data which needs to be classified as critical or sensitive data, which needs to be classified as critical or sensitive data। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में आपके सामने रखा था। Which of the following stands correct about personal data protection bill? पहला प्रोविजन था right to be forgotten is proposed under this bill. This statement is very much correct. Sorry, this statement is very much correct, right? ये जो statement है right to be forgotten इस bill में mentioned है, very much correct. Next is it is based upon the recommendation of BN श्री कृष्णा कमिटी रिपोर्ट। श्री कृष्णा कमिटी रिपोर्ट पे ये बेस्ड अपॉन है, अगेन वेरी मच करेक्ट। सो 1 and 2 both are correct. Third statement is data fiduciary is the one whose data is being collected here. यहां पे आपको समझना है दिक्कत क्या है। जिस इंडिविजुअल का डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, दैट इंडिविजुअल इज टर्म्ड एज डेटा प्रिंसिपल। Data principal, not data fiduciary. Data fiduciary is the one who will decide what data is to be collected and why it is to be collected. ठीक है, वो data fiduciary हुआ। तो ऑप्शन 1 and 2 is the correct answer. Second question is right to privacy is protected as intrinsic part of right to life and personal liberty. Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement? Article 21 of the Constitution talks about liberty and privacy. So Article 21 and the freedom guaranteed under under Part 3 of the Constitution. Part 3 of the Constitution क्या होता है? Fundamental rights. All the fundamental rights are mentioned in Part 3 of the Constitution. Thus, option 3, third statement is the correct statement. So we have seen both the MCQs. Hopefully you have understood that this topic in and out. Notes जो है इससे related वो कल आपको ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। क्लियर है सबको? Everyone? Is this clear to everyone? A, C, C. Very good, very good. Everyone has correctly answered. So I believe that समझ में आया है सबको अच्छी तरह से।
I believe everyone has understood the topic and अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है मेंस में या फिर प्रीलिम्स में, I believe you all of you will be in a very good position to answer the question correctly and you will justify the demand of the question. So this is all that we have for today. We'll meet again on next Tuesday with, मगर अगले ट्यूसडे को जो हम मिलेंगे हम सिर्फ एक टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे. आज एक टॉपिक डिस्कस इसलिए किया क्योंकि बड़ा टॉपिक था, डिटेल में पढ़ना जरूरी था इसको. अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो हम 2-3 टॉपिक जो हैं उस दिन कवर करने की कोशिश करेंगे, शायद 4 टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, टिल देन प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट, गुड लक.